classes you're going to do in all practicals, first order, second order. Okay, if you have no questions, then we'll solve a problem. See, this is a solved example. Details are given in the book, but we'll solve it anyway so that you understand how it is to be done. To find a rate equation using integral method, there's a reaction and these are data. So as I said before, you're going to have reaction, that means solid state plus NaOH reacting. Once you mix, that is your time 0 starts, and that Ca0 we can calculate value. It's a calculate value. You can calculate. We have shown you how to calculate Ca0. And then you take samples at different times, and then titrate to find out what is the value of Ca at that time. These are actual readings. Then based on that, we need to find out if you want to fit first order ln Ca0 by Ca or minus ln Ca by Ca0. Find out that value. Ca0 पता है, Ca value पता है, right? यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर different values आएगा. And for second order, find out what is the value of 1 upon Ca. Okay. So now what do we do next? What should we do next? इसके बाद क्या करना चाहिए? तो हो गया सिंपल. How do I test first order है कि second order है? Anybody remembers how to test whether it is first order or second order? Devendra? Can you guys hear me? Can you hear me? Somebody has to respond. Dikshita, can you hear me? Yes, sir. Respond क्यों नहीं करते? When I ask you some question, at least somebody has to respond so that I know that you are able to hear me. Otherwise, I am just wondering, आप सो रहे हो कि जाग रहे हो कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? So how do I test first order है कि second order? Sir, we will assume the rate equation first. Okay, then what do we do? फिर integrate करेंगे. Okay, इसके बाद after that फिर सर slope निकालेंगे. सेम आना चाहिए. मतलब फर्स्ट ऑर्डर रहा K वगैरह. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन है? What is the equation of first order? ln Ca0 by Ca is equal to Kt. Minus ln Ca by Ca0 or ln Ca0 by Ca is equal to Kt. Right? So we have this value of ln Ca0 by Ca. So if you plot against time, you should get a straight line, right? So when we talk about CRE, everybody should have a graph paper with you. प्लॉट करके देखो कैसा आता है. ln Ca0 by Ca मैंने कैलकुलेट वैल्यू दिखाया आपको. जस्ट प्लॉट करके देखो what kind of curve you get. Actually you have to do it, and that is what is part of the experiment. Experiment यही रहता है. You find out what is the value of Ca at different times, calculate ln Ca0 by Ca and plot against time.
तो प्लॉट करो अभी। क्या आपके पास ग्राफ पेपर सबके पास? कितने लोगों के पास ग्राफ पेपर है अभी? यू आर एट होम राइट, तो होना चाहिए आपके पास, है कि नहीं? Okay, so take a graph paper and plot these values. I have shown you the values. I don't want you to calculate because it's already calculated. Just plot and see. That's the key part. What kind of curve you get. सर ग्राफ की जरूरत नहीं लगेगी ना? अच्छा, कैसे कैसे करेंगे फिर? सर जो स्लोप है वो कांस्टेंट आना चाहिए ना? तो स्लोप कैसे निकालेंगे? ln ca बाय ca नॉट डिवाइड बाय t करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, हर मतलब इंस्टेंट के लिए। इंस्टेंट के लिए नहीं होता है. इट इज ऑलवेज, स्लोप इज ऑलवेज व्हाट, व्हेन आई टेक स्लोप, सपोज आई हैव दिस, and suppose I get a straight line. Okay, तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? How do we calculate slope of this line? Who can tell me how do you calculate slope of a line? किसी को पता नहीं है? सिद्धि? Sir, y2 minus y1 upon x2 minus x1. 2 Right. points. At least 2 points. You cannot take just 1 point, Devendra. I cannot calculate slope from 1 point because 1 point I can have 100 lines going through it, one line, 1 point. I can draw 100 lines going through one single point. Single point is never going to give you a slope. Understand that. You need at least 2 points to get a slope. समझा देवेंद्र? ये सर मतलब उस सेट के लिए एक्सपेरिमेंट के अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो के हर सेट के लिए सेम आना चाहिए ना? 0 के लिए 0 मिनट पे 10 मिनट पे। कौन सा लोगे? हाँ, कौन सा सेट लोगे बताओ मेरे को. You have this data, right? Which set you will take? सर मतलब अभी जब टाइम 20 होगा तब ln ca नॉट बाय ca की वैल्यू है, तब k की वैल्यू एक मिल जाएगी, फिर जब टाइम 60 होगा तब एक वैल्यू मिल जाएगी k की। Okay. So you are saying you are not calculating slope, you are calculating k value for each of the points. Right? ये बोल रहे हैं ना आप? You want to calculate k value for each of the points because this is known, so you can calculate k values. बराबर? हाँ सर। ठीक है, तो करो calculate. Let's do that. I have no problem. You can. This is actually we are doing trial and error, right? So let's do k values. Find out what is the value of k for all the points. बताओ मेरे को क्या वैल्यू है k का. Everybody will calculate k value for all these points and find out what are the values of k and tell me.
Okay, calculations. Discover calculations. Okay, Devendra. हाँ सर. तो value बताओ. सर मतलब कांस्टेंट नहीं है पर दो डेसिमल तक कांस्टेंट Tell me the values. 0.01 मतलब फर्स्ट के लिए 0.0 111 Triple 1 5 यानी 6. ओके ओके. सेकंड के लिए सर ये सेकंड के लिए था. वो सेकंड के लिए था. ठीक है. 0.0 111 ओके. इसके बाद सर 0.01115 1 सर नहीं आपने ऊपर क्या लिखा है 0.000 लिखा है ना तो 0.0111 है. 0.0111 ऐसा. हाँ. इसका 0.0127 127. ओके. इसका 0.01155 ओके. इसका 0.01 ओके. इसका 0.0009 लास्ट वाले का सर वो 0.0009 था. 0009. ओके. इसका 0.0007 ओके. सबका ये वैल्यूज आया गया. राउंड अबाउट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा बट इट्स जस्ट कांस्टेंट वैल्यू. क्या देवेंद्र, इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू? इफ आई टेक एवरेज, एवरेज कितना आएगा? So last two 009 and 007. 00 है. 00 नहीं है क्या नहीं. देवेंद्र? इज इट 00 00? हाँ सर 009 और 007 ओके. एवरेज कितना आएगा? सर 0.01 आ रहा है एवरेज. 01 आ रहा है. ओके. ठीक है. So if you take this one 0.01 as average, यहाँ पर कितना आ रहा है? What is the error here? If I take average as 0.01, what is the average here from actual error? It is 30%.
राइट, यहाँ पर 27%, यहाँ पर 11%, 16%, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 10%. So you have lot of error. इतना एरर नहीं चलता है, थोड़ा बहुत ठीक है, 2 4 5% आई कैन अंडरस्टैंड. 30% एरर इज नॉट negligible. So you cannot say it is first order, and that is why you plot and see कि straight line पे आ रहा है कि जी points are falling on straight line or not. So doing all these calculations, the test in your practical is that you plot this versus time and see what kind of curve you get. You get some points इधर उधर आएगा, but you can see trend क्या है. अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ठीक है, अगर ऐसा कर्व आ रहा है then it's different. आपका ऑल्दो एक्सपेरिमेंटल डेटा में बहुत एरर रहेगा, 25-30% डेटा एरर रहेगा ही पक्का. ये जो बोल रहे हैं 35-30% एरर, इतना एरर आपके डेटा में भी रहेगा. सो यू आर गोइंग टू गेट अ कर्व मोस्टली, राइट. तो यहाँ पर मुश्किल होगा. सो व्हाट he has done in that solved example, I'll show you that. Okay, before that let's go to, if you assume second order तो कैसे करेंगे टेस्ट फिर सेकंड ऑर्डर के लिए ना. सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे करेंगे टेस्ट. इक्वेशन याद है किसी को सेकंड ऑर्डर का. नहीं यार. So this is the equation for second order, and if you plot similarly a graph, what you should get is, if I plot 1 upon CA versus time, I should get a straight line just passing through 1 upon CA naught, and the slope should be equal to K. And points will be scattered again. Points are not going to fall on the line. Lot of variation will be there. Errors will be there. Right. So by Devendra's logic, I can calculate K. CA पता है, C नॉट पता है, K कैलकुलेट कर सकता हूँ. बराबर है देवेंद्र, सेकंड ऑर्डर के लिए भी. हाँ सर. तो करो कैलकुलेट, देखते हैं क्या आता है के वैल्यूज सेकंड ऑर्डर के लिए. बिकॉज यू नो सी ए नॉट, यू नो सी ए इक्वेशन पता है आपको, राइट. 1 upon C equal to 1 upon C naught plus KT. So find out what is the value of K. Essentially K will be find out what is the value of K for each of the data points and see what kind of values we get. ठीक है, कर सकते हैं.
हो गया कैलकुलेशंस? किसका हो गया कैलकुलेशंस? सर यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं आ रहे। तो बताओ वैल्यूज क्या? सर सेकंड के लिए 1.25 इंटू 10⁻³ 1.66 इंटू 10⁻³ और 1.66 इंटू 10⁻³ सेम। 1.94 इंटू 10⁻³ 2.22 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³। और पहले वाले का 0। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर भी आपका एवरेज काफ़ी, यहाँ तो बहुत बहुत आएगा एरर, यहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा कम था एरर, 30% था मैक्सिमम। यहाँ पर इफ यू टेक एवरेज करीब 1.5 1.6 आएगा, तो काफ़ी डिफरेंस आएगा एवरेज एरर। सो सेकंड ऑर्डर इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, बराबर। सो दैट इज़ वाई वी प्लॉट एंड सी, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, ये जस्ट एवरेजिंग आउट, एवरेज निकाल रहे हैं हम। व्हेन आई टेक स्लोप हियर ऑफ दिस लाइन, आई एम टेकिंग एवरेज ऑफ स्लोप, बट आई एम सीइंग कि पॉइंट्स कैसे वेरी हो रहे हैं, राइट। सो इसमें भी सेकंड ऑर्डर नहीं आएगा। सो देन वी नीड व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकंड ऑर्डर नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट शुड वी ट्राई देन? थर्ड ऑर्डर के लिए ट्राई करें। क्या? फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, सेकंड ऑर्डर नहीं है, तो क्या ट्रैक करना चाहिए? तो डेसिमल कर सकते हैं क्या? हाँ, तो मतलब फ्रैक्शनल कंसिडर कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सो वी कैन टू ट्राई फ्रैक्शनल। ये एग्जांपल उसके लिए दिया है, बुक में सॉल्व ही है, फ्रैक्शनल ऑर्डर। इक्वेशन याद है किसी को फ्रैक्शनल ऑर्डर का? ठीक है, सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। ही इज एक्चुअली कंसिडर्ड, बुक में लिया है f इक्वल टू 0.8 लिया है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ये बुक का है। वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। वी टेक f इक्वल टू 0.5, so we get t of t half life equal to 0.5
raised to 1 minus n minus 1 upon k into n minus 1 c naught raised to 1 minus n. ठीक है. सो ये ट्राई करने के लिए दैट मीन्स वी नीड, या तो कर से कर सकते हैं, इसने कर से किया है, आप देख लेना कर का कैसा है, बट आई वांटेड टू शो यू अ सिंपलर मेथड हाफ लाइफ का. सो इफ यू लुक एट दिस डेटा, हाफ लाइफ के डेटा पॉइंट्स दिख रहा है कुछ आपको? then can you isolate or identify points which we can use for calculating half life or using equation of half life? 10 and 5 कह सकते हो. 10 and 5 10 and 5 और भी ले सकते हैं ना. 2 कैसे लेंगे? 2 and 1, okay, and 6 and 3, बराबर. So if I take CA naught as 10, half life के बाद 5 होना चाहिए. If I take CA naught as 6, basically I am taking this as CA naught, right? I can take anything as CA naught, because if I take experiment with starting with CA naught equal to 10, half life के बाद 5 हो जाएगा concentration. If I take continuous experiment with CA naught equal to 6, half life के बाद 3 हो जाएगा. If I take CA naught experiment with CA naught equal to 2, half life के बाद 1 हो जाएगा, बराबर. So I have 3 sets of data, बराबर, which I can use to calculate k values. Right? ये इक्वेशन में मेरे पास t हाफ है, CA नॉट है, राइट, और क्या है मेरे पास? n नहीं है मेरे पास, k भी नहीं है. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से, जैसे बताया था, आई थिंक आई टोल्ड यू बिफोर, आई कैन टेक t हाफ फॉर वन सेट ऑफ डेटा पॉइंट डिवाइड बाय t हाफ ऑफ सेकंड सेट ऑफ डेटा पॉइंट. For first set of data point, and again for second set of data point. तो क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, and what we'll get is t half of first set data point, t half of second set data point is equal to for first set of data point divided by ठीक है. सर CA नॉट के टर्म CA नॉट कैंसिल हो जाएगा ना, CA नॉट विल गेट कैंसिल. एक मिनट लेट मी सी. नहीं, कैंसिल नहीं होगा, दिस सेपरेट आएगा. तो CA नॉट इज नॉट द सेम वैल्यू, सो ये भी आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है. सो आई नो CA नॉट फॉर बोथ द डेटा पॉइंट्स, both sets of data points, and I can find out what is the value of n. कर सकते हैं क्या? एक्चुअली ये भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज सेम थिंग, राइट? n इज कांस्टेंट, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है, वेरिएशन नहीं है, n इज कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम है. तो व्हाट विल गेट इज एक्चुअली
right? So C is not for first data point, but C is not for second data point, just for 1 minus n. And you can take logarithms. So then you can find out what is the value of n. ये अपने को पता है, ये अपने को पता है. So you can find out what is the value of n. समझा क्या? Any questions? Yes. So what you can do is now you have the t half values. यहाँ पर दिया ऑलरेडी हमने सेट सेलेक्ट किया है. इसमें टी हाफ कितना हो जाएगा? कितना आएगा टी हाफ इसका? फर्स्ट सेट का टी हाफ कितना आएगा? इट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. कितना आएगा? So when you start with C naught equal to 10, how much time it will take to reduce the concentration to 5? नूपुर है क्या? नूपुर रितेश हाँ सर. हाँ तो 60 आएगा ना. 60 seconds बराबर है. So it takes 60 seconds to reduce the concentration from 10 to 5. That is the half life period. So 6 से 3 का कितना आएगा half life? 80. राइट. ये 40 है, सपोज ये 6 है, राइट? ये 6 का 40 है और 3 का 120 है, तो 80 सेकेंड्स हो जाएगा. और इसके लिए 120. you should be able to read the data and find out what is half-life, because this data is not given as half-life data, but you can interpret it as half-life. So if I take concentration, starting concentration is 10 moles per liter, it takes 60 seconds to reduce the concentration to 5 moles per liter. So that is half-life for C naught equal to 10. If I start with C naught equal to 6 moles per liter, it takes 120 minus 40, because ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर लिया हमने, C naught रेज्यूम किया, तो 40 सेकेंड स्टार्टिंग टाइम है और हाफ कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए 120 होता है, तो 120 minus 40 is 80 seconds. 80 seconds is half life for C naught equal to 6. Similarly, if I take C naught equal to 2, the starting time is 180 seconds. उसको हाफ होने के लिए 300 seconds तक पहुँचना है, तो 300 minus 180 is 120 seconds. So you know half life time T half दिया है, concentration C naught दिया है. You can find out what is the value of n from this equation. ये पता है अपने को, ये पता है, ये पता है, ये पता है. You can find out what is n. ठीक है? So calculate. इक्वेशन लिख लो, यहाँ पर वैल्यूज दिया, so ऊपर नीचे you have to remember, you have to write down the values of C naught and T half for each C naught.
So you have 3 data points, so you can have 2 values of n calculated. You can take C0 equal to 10 and 6, एक सेट हो जाएगा. You can take 10 and 2, दूसरा सेट हो जाएगा. You can take 6 and 2, तीन सेट हो सकते हैं. You can calculate n 3 times and see whether you're getting the same n value. समझा क्या? Because you're using 2 half-life periods. तो 3 है, तो you can have 3 sets and you can calculate n 3 times. Let's see what do you get for n. The equation is given here. Use this equation to find out what is the value of n for the 3 sets of data. So now you can combine these two. You can combine these two, and you can combine these two to get n. इसके लिए n क्या है निकालो. इसके लिए n क्या है निकालो. और बाद में इसके लिए n क्या है निकालो. बराबर में वैल्यूज 10, 6 and 10, 6 to 60, 80, 120 बराबर. हो गया कैलकुलेशंस. सर फर्स्ट सेट के लिए 2.297 आ रहा है. 1 minus n होगा ना ये, to calculate n value. फर्स्ट के लिए 1.563 आता है. हाँ, फर्स्ट सेट के लिए 1.563 आता है. इसके लिए सेकेंड सेट के लिए 1.369. थर्ड के लिए 1.43. 1.43. ओके. हाँ सर 1.4. राइट. सो सेम नहीं आ रहा बराबर. व्हाट डू वी डू? व्हाट शुड वी डू? एवरेज लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? Can do the average. There is one option. Second option is ये जो इक्वेशन है, राइट. So plot log of t half
versus log of CA naught, and take the slope. You'll get some line, sorry, points will be again not on the line. We're doing the same thing, average निकाल रहे हैं, इसका slope निकाला हमने. इसका एवरेज कितना आता है? सर 1.454. ठीक है, so it's okay. You can take the average or you can do this way. Plot log of TR versus log of CA naught and get the slope. Slope भी almost उतना ही आएगा. बुक में 1.4 आंसर निकाला है. 1.45 is not bad. It's very close. ठीक है, समझ में आया कैसे निकालने का. बुक में ये सेकंड 0.8 का फ्रैक्शनल वैल्यू एंड दिस टेकन सम डिफरेंट डेटा पॉइंट्स, तो आप देख सकते हो खुद. तो अभी once you get the value of n, you can find the value of k, right? You can take k value and find out. ये क्वेश्चन में कहाँ गया? या ये इक्वेशन से you can find out value of k. Again, you will get 2-3 values of k. Take the average. तो कैलकुलेट करो k का वैल्यूज. n इक्वल टू 1.45 लेके. You have t off values, you have c naught values. n equal to 1.45 लेके find out the value of k for each of the data points. k क्या आ जाएगा? इसके लिए नहीं, सॉरी. Each of these data points k values क्या आएगा? इक्वेशन पता है, दिखाऊँ आपको. t ऑफ इक्वल टू 0.5 raised to 1 minus n, ये इक्वेशन लेके k वैल्यू निकालो सबके लिए. सर के की वैल्यू 0.2885 आते हैं. 0.2885 सबके लिए. नहीं फर्स्ट सी नॉट 10 के लिए निकाला था. ओके, बाकी सर एक मिनट कैलकुलेट. रॉन्ग है एक्चुअली. के वैल्यू 0.288 नहीं आना चाहिए, 0.005 आना चाहिए. चेक करो, ये गलत है ये. ओके सर. और किसी का हुआ गया?
So 0.577. 0.57 कुछ तो गड़बड़ है। 0.00005 चाहिए। should be 005. T half is equal to 0.5 raised to 1 minus n. N is 1.45 divided by k. So k इधर आएगा, T half नीचे आएगा। So that's what is value given in the book. It should not be too different. थोड़ा डिफरेंस चलता है। 0.0048 क्या रफली उतने आना चाहिए तीनों का, थोड़ा वेरिएशन होगा नेचुरली। सेकंड कितना है? सेकंड का सर 0.00605। और थर्ड का? एवरेज कितना हो जाएगा? सर सेकंड 0.0045 है। थर्ड का कितना है? Average is 0.0047.
क्लोज बुक का 0.005 है, तो रेट इक्वेशन विल बी यूनिट्स क्या रहेगा? What are the units of K? Sir, liter raised to 0.45 and upon mole raised to 0.45 and upon में second per second. Right. So here's the procedure. बुक का कुछ अलग दिया है बट सिमिलर है. उसने 0.8 के लिए लिया है फ्रैक्शनल कन्वर्शन और ग्राफ ऑफ ड्रॉ करके बताया. I have not done that. Let me show you what is there in the book. You can actually read it. Okay, so first order किया उसने, assume किया. Can you see this? फर्स्ट ऑर्डर का लेंथ सी ए नॉट बाय सी ए प्लॉट किया वर्सेस टाइम. स्ट्रेट लाइन नहीं आया, सो दिस नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड ऑर्डर लिया, अगेन प्लॉट किया 1/सी ए वर्सेस टाइम. अगेन इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉट अ सेकंड ऑर्डर. देन ही हैज टेकन फ्रैक्शन एज 0.8. टी एफ का 0.8 के लिए लिया उसने, और उसने सब पॉइंट्स लिया है. 10 का 80% 8 होगा, 5 का 80% 4 होगा, 2 का 80% 1.6 होगा. ये सब इससे करने के लिए इसने सी ए वर्सेस टाइम ड्रॉ किया है. सी ए का वैल्यूज़ दिया है, टाइम का वैल्यूज़ दिया है, सो ये ड्रॉन ऑल दिस थिंग और यहाँ से वैल्यूज़ निकाला 80% के लिए इसने. ये हमने नहीं किया, वी जस्ट टेकन डायरेक्टली. एंड देन ये प्लॉटेड लॉग टी वर्सेस एल एन सी ए नॉट. स्लोप निकाला इसने 1.4. एंड देन ये डन ओनली वन कैलकुलेशन. एक पॉइंट के लिए निकाला के का वैल्यू 0.005. हमने तीनों का एवरेज निकाला था. सो द मेथड इज सिमिलर, so you can go through this one. Any questions on integral method of analysis? जब हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू फ्रैक्शनल बिकॉज हमारे को पता है फ्रैक्शनल नहीं है हमारा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ओनली दीज टू. राइट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आना चाहिए. स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा एरर बहुत रहता है, बट इट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जीरो. और इसका स्लोप निकालेंगे हम के निकालने के लिए. सो दैट भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा रहेगा. बट एट द सेम टाइम वील ड्रॉ ln 1/c वर्सेस टाइम फॉर ऑल द रिएक्शंस मीन सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए. और आपको पता दिखेगा कि ये इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, एकदम बिल्कुल बेकार आएगा. तो दोनों ड्रॉ करने का. सो फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट सेकंड ऑर्डर के लिए भी आप दोनों ड्रॉ करेंगे कर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आप दोनों ड्रॉ करेंगे कर, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन कंक्लूड और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के. सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ से इस कर्व से, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस कर्व से के निकालेंगे. समझ में आया लोगों को? आपका एक्सपेरिमेंट्स आर मोस्टली दैट ओनली, सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर. बट फॉर बोथ ऑल एक्सपेरिमेंट्स जो ड्रॉ बोथ द ग्राफ्स ln CA नॉट बाय CA वर्सेस टाइम एंड 1/CA वर्सेस टाइम. सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट कर्व में आएगा के वैल्यू, सेकंड ऑर्डर के लिए सेकंड कर्व का के वैल्यू आएगा. ओके, सो उसके बाद में सर डिफरेंशियल मेथड से कैसे करते हैं? बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट ओनली. हमारे एक्सपेरिमेंट में डिफरेंशियल मेथड नहीं है, बिकॉज डिफरेंशियल मेथड के लिए डेटा बहुत एक्यूरेट चाहिए. So we don't do it in the experiments, but I'll show you the differential method of analysis. यहाँ पर भी एक सॉल्व एग्जांपल दिया है इसने. Let's see.
So find a rate equation to fit a set of data using differential method, right? So nth order rate equation निकालने का है. तो what they do is, जो अपना CA का वैल्यूज है अपने पास, उस वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे and draw smooth curve through that. All the points should be on the line. ऐसा smooth curve आएगा, straight line नहीं आएगा, curve ही आएगा. And then take different points and draw a tangent to the curve at different times. ये टाइम पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टाइम पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टाइम पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया. सो डिफरेंट पॉइंट्स लेके टेंजेंट ड्रॉ किया और स्लोप निकाला इसका. स्लोप क्या मिलेगा आपने, व्हाट इज स्लोप टेल अस? सी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देगा हमारे को? राइट, सो टेल अस माइनस dCA by dt. तो इसने ये निकाला यहाँ पर कॉलम 1 टाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड देन स्लोप निकाला इसने सबका different points per, and is found out value of dCA by dt. dCA by dt will be minus. Why will it be minus? dCA by dt minus क्यों होगा? concentration decrease हो रही है. Concentration decrease हो रहा है, reactant है ये, तो माइनस आएगा. Actually it take minus dCA by dt, तो माइनस dCA by dt लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, राइट. सो log of माइनस dCA by dt लिया इसने यहाँ पर ये वैल्यूज़ का, और ये log कैलकुलेट किया, राइट, और log of CA कैलकुलेट किया. CA वैल्यू है हमारे पास, उसका log of CA किया, and then we draw this versus this. Yeah, so this is a rate equation. Minus R is equal to minus dC by dt equal to K C raised to power of n. Nth order लिया है. Take the log of minus R is equal to log of minus dC by dt is equal to log of K plus n times log of CA. तो log of minus dC by dt versus log of CA plot किया, तो n will be slope and this intercept will be log of K. So directly अपने को n और K मिल जाएगा, and that is what he has done. निकाला है इसमें यहाँ पर, वो सेम डेटा है जो हमने अभी कैलकुलेट किया 0.005 वगैरह. सो उसने अभी यहाँ पर यहाँ ही दिखाया लॉग ऑफ माइनस dCA by dt वर्सेस लॉग ऑफ CA प्लॉट किया, राइट. और ये जो डेटा आया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का, आपने को पता है आपने स्ट्रेट लाइन ही मिलना चाहिए, बट पॉइंट्स विल नॉट ऑल बी ऑन द line, they'll be scattered, but you draw the best line through these data points, and what you get is intercept is equal to log of K. तो K का वैल्यू मिल गया, एंड स्लोप इज इक्वल टू n. ये दिस इज डिफरेंशियल मेथड. डायरेक्टली यू कैन गेट n एंड K. समझा क्या? सर तो फिर ये फास्ट है ना डिफरेंशियल मेथड, ज़्यादा फास्ट है, बट इसके लिए डेटा एक्यूरेट चाहिए. लैब का अपना डेटा रहता है, उसमें बहुत एरर रहता है. आई टोल्ड यू बिफोर, राइट. मिक्सिंग हमारा परफेक्ट नहीं रहता है, तो कॉन्सेंट्रेशन परफेक्ट नहीं रहता है, टाइमिंग जो रहता है वो परफेक्ट नहीं रहता है, सैम्पल जो लेते हो परफेक्ट नहीं रहता है. देयर आर मेनी एरर्स इन द लैब. ये तो इसने फिक्शनल डेटा दिया है तो मिल जाता है. तो लैब का डेटा करके करोगे तो थोड़ा है ना डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज एक्यूरेसी इज नॉट देयर. यू नीड वेरी एक्यूरेट डेटा फॉर डिफरेंशियल एनालिसिस. सर. तो फिर इसके लिए कुछ हम वो सिमुलेशन वगैरह यूज नहीं कर सकते क्या सॉफ्टवेयर? सिमुलेशन कैसे करेंगे, यूज करेंगे बताओ? सर मतलब कोई अवेलेबल है क्या सॉफ्टवेयर वगैरह की उसमें डेटा वगैरह डाल के? Software is not a problem. You can draw the curve, you can take the tangent, slope वगैरह वगैरह, right? But question is how accurate is your data? मैं वो बोल रहा हूँ डेटा एक्यूरेसी जो CA वर्सेस टाइम निकाला हमने, उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगा तो ये आपको जो है ये लाइन बराबर नहीं आएगा. यू कैन ट्राई, ऐसा कुछ नहीं है. आपको जो डेटा मिलने वाला है लैब में, यू कैन ट्राई दिस. सेम डेटा दिया है इसने भी, एग्जाम्पल में भी सेम डेटा ही हैज टेकन एंड ही हैज ट्राइड इट. करके देखो. लेकिन हमारे पता है इस केस में क्या है, n इज इक्वल नॉट ए फ्रैक्शनल ऑर्डर. इससे फ्रैक्शनल ऑर्डर लिया, बट n इज इंटीजर अपने लिए. हमारा जो रिएक्शन हो रहा है हमको पता है n इक्वल टू 1 है सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, n इक्वल टू 2 है सेकंड ऑर्डर के लिए. यू कैन ट्राई इट, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग इट. जो डेटा आप आर्ट लैब में कलेक्ट करोगे, ट्राई इट एंड सी व्हाट यू गेट. whether you get n equal to 1 for pseudo first order and equal to 2 for second order.
Nothing wrong with it. You can do it. ठीक है? कोई क्वेश्चन है? इंटीग्रल मेथड एंड डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस. So actually this completes our unit 2. Next time we'll start unit 3. और आपका टेस्ट कब है पता है ना आपको? unit 2 का. याद है कि नहीं किसी को? सेकेंड यूनिट टेस्ट. Nobody remembers, is it? सिद्धि? So Thursday. थर्सडे को है at 2 PM. अपने लेक्चर में करेंगे क्योंकि हमारा अभी 2 यूनिट हुआ है. So I'll take the lecture 12 to 1 and then at 2 PM we'll have the test. And it will be numericals only. Derivation नहीं देने वाला हूँ मैं कुछ. Numericals रहेंगे. दो या 3 क्वेश्चन रहेंगे. I don't remember now कितना है. But you get enough time. Simple question रहेंगे. You have to solve the questions and scan it and submit your PDF on Classroom.